Yes, ma'am. So over to you, Ankita. Okay. Hello, everyone. Good evening. My name is Ankita, and I'm going to present a story today. So just need your cooperation. Like you are kid, so just create a small kid in you, and I will try to entertain you guys. Okay. Okay. Once upon a time, there was a jungle. And in that jungle, there was an elephant. His name was Chotu. Chotu was very nice, very kind, but he was very lonely. He was in search of friends. He was having no friends. He was roaming here and there. He used to roam here and there in the jungle. So once he met a monkey. His name was Muku. Hoo hoo ha ha ha. Hoo hoo ha ha ha. He was sitting on the tree. So elephant said to monkey, 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 will you be my friend? My name is Gugu. Monkey said, my name is Muku, but you are such a big animal and I'm such a small animal. And I go from one tree to another tree, second tree to third tree. So you can't do like this. So we can't be friends. He was very sad. He said, okay. Then he moved further. Then monkey went away. Now he moved further, further, further. He was praying to God, why can't I be the friend of anyone, anyone, anyone? Now he moved further, further, further. Now he saw a rabbit, rabbit the rubbu. Tuk, 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 tuk. So he said to rabbit, hello rabbit, how are you? Will you be my friend? Rabbit said, hi, but I can't be your friend because you are such a big animal and I live in a burrow. I hop from here to there, and here to there. So how can I be your friend? So elephant said, okay, don't be my friend then. Then rabbit went away and elephant was again very sad. He was going from here, there in search of another friend, in search of another friend. Now, after going such a far, there was a big pond. Then he met Froggy. He, rabbit, 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 rabbit. Froggy said, hello, elephant. Elephant said, hello, Froggy. So elephant said, will you be my friend? Froggy said, you are such a big animal and I'm such a tiny, small animal. I go from here to there, one pond to another pond, from water to water. So how can I be your friend? You are such a big animal. No, 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 no. I can't be your friend. Then elephant was very sad. बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ. Then he was very down. He went again to his house, again to his house, again to his house. Now what happened? The next day, all three animals met him. Frog, monkey, and rabbit. And they were crying so much. Elephant asked them, why are you crying? Why are you crying? They said that we met a lion. He is the king of the jungle. And he said that he will eat us all. So we are hiding from him. Please save us. Please save us. Elephant said, don't fear. I will help you. Don't worry. So now the elephant went to the king of the jungle, the lion. Ha 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 ha. The lion said, who are you and why did you came here? So elephant said that frog, rabbit and monkey, these all are my friends. So please don't eat them. Please don't eat them. Lion said, those are my fruit and I'm very hungry. I'm very hungry. I will eat them. Elephant said, I will not let you to eat them. He just pushed him. And lion fallen down. Now the lion did not waked up and again the elephant beat him. Oh. And the lion finally fallen down.
Now the elephant was very happy. Happily, he went to all of them, the rabbit, frog, and monkey. Now he said them, now don't worry, the lion will not come because he is no more now. I have taught him a lesson. So everyone were very happy. They said that we will be a good friends. So the moral of the story, the friend in need is a friend indeed. Yeah. वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा किया. आपकी फाइटिंग भी बहुत अच्छी थी. एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे थे, and you were in the flow, and your presentation was very smooth, and you were in the characters also. Like all the characters, you tried to imitate them, and it was wonderfully presented. Wonderful. Thank you. Okay, now I would like to present a rhyme. For that, I would request every one of you to bring a teddy bear or a doll if you have with you. So any soft toy, whatever you have, please, can you bring it just for 2 minutes? A small, a big teddy, a small, anyone, a dog, anything, yes. Soft toy. So is everyone there with the teddy bear? Wow. Such cute teddy bears with everyone. Very good. Where are other children? I can't see them. Shaheen, Supriya, Yeah. Savita. Yes, very nice. Wow. Wow, ma'am has so many teddies. Wow, such a nice dog. It's a bear, Savita? Yeah, it's a teddy bear, Teddy bear. a Wow. white bear. Yes. And my teddy bear has already got that certification from the ma'am. That's My God, he's a scholar. yes. Already certified. Yes, already certified. So, Chanchal, Shine, Supriya, I can't see you. Actually, I am outside, so I don't Okay. have teddy bear. Okay, no problem. So you can just make yourself the teddy bear. It will be fine. Yes, yes. Okay. So we'll. And this is my new teddy bear. Yeah, wow. Such a nice. You can make him teddy bear. Yes. Our poem. Okay. Everyone loves the teddy bear, and we just want to learn from this poem. Yes, that we have 2 eyes, 1 nose, 2 ears, 2 hands, 2 legs. Okay. So, are you ready? So we'll start. My teddy bear has 2 eyes, 2 eyes, 2 eyes. My teddy bear has 2 eyes. I love my teddy bear. You do like I do, and in the similar way, and also sing the next line with me. Okay. My teddy bear has 2 eyes, 2 eyes. I love my teddy bear. Say it. My teddy bear has 2 eyes. 2 2 eyes. eyes. I love my teddy bear. So much. My teddy bear has 1 nose, 1 nose, 1 nose. My teddy bear has 1 nose. I love my teddy bear. My teddy bear has one nose, one nose, One nose. nose. and I love Love my teddy. very much. One nose. I love Yes. my teddy bear. My I teddy love bear has 2 ears, 2 ears, 2 ears. My teddy bear has 2 ears. I love my teddy bear. My teddy bear has 2 ears, 2 ears. I love my teddy bear. My teddy bear has 4 pawns, 4 pawns, 4 pawns. My teddy bear has 4 pawns. I love my teddy bear. My My teddy teddy bear has 4 pawns, 4 pawns. 4 pawns. I love My my teddy bear. bear. My teddy bear has 2 legs, 2 legs. My teddy bear has 2 legs. I love my teddy bear.
My teddy bear My has teddy two bear legs. has two legs. I love my teddy bear. Yes, so our teddy bear has 2 eyes, 1 nose, 2 ears, 2 legs, 4 paws, and 1. Okay. Now we will switch to our second rhyme. Okay, for that, every one of you need to just stand up from your place. Okay. So everyone is there? Okay. So I will sing a rhyme and we all have to do the action. Okay? 1, 2, 3, start. Head, shoulders, knees and toes. Knees and toes. Do it. Head, Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. and eyes and ears. Mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. Knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, and eyes and nose, and ears. And mouth and nose. A little bit faster. Head, shoulders, knees and toes. Knees and toes. Head, Head, shoulder, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and Shoulder, knees toes. and toes. Little bit more faster. Head, Head, shoulder, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Jump, jump, jump. Let's just all jump. Bump, bump, bump. Make your muscles pump. Slowly, slowly, slowly. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. Very good, class. Everyone did a superb job, superb. Very good. So, thank you from my side. Thank you. Well done. बहुत अच्छा एक्सरसाइज कराया हम सबको. Thank you so much for participating, everyone. Thank you so much. बहुत अच्छा किया आपने अंकिता. और आज आप एनर्जेटिक भी लग रहे हो. रोज बहुत थके हारे दिखते हो. आज अच्छे भी दिख रहे हो. मेकअप किया क्या? नहीं आज बच्चों को बाहर हस्बैंड के साथ भेज दिया कि उनको 15 मिनट. अच्छा. ओके. बहुत अच्छा हुआ आपका प्रेजेंटेशन. वंडरफुल. Thank you, ma'am. Thank you. चलो नेक्स्ट. Who would like to give presentation? Bharti, you ready? मैम एक्चुअली स्टोरी और एक पोयम सेम ही हो गया है. मैंने अरे दोनों सेम. मतलब एक पोयम और एक स्टोरी दोनों सेम है. हेड शोल्डर वाला. Even I shortlisted that story. I too. अच्छा. स्टोरी कौन सी आपकी? यही है, एलिफेंट एंड फ्रेंड्स. अरे इतना कैसे सेम हो गया? मैंने पता था ना व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला करो तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगा. मैंने पूरा प्रिपेयर करके तो आपने वो ये किए कि उसके प्रॉप्स वगैरह बनाए हैं क्या? हाँ एक्चुअली मेरे पास ये है, कार्डबोर्ड पे है ऐसे. तो ठीक है, कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके ठीक है. एक्स्ट्रा कर लेना बाद में. ठीक है. अभी जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है वो कर दो. और इसके बाद अभी जो आप सिलेक्ट कर रहे हो ना स्टोरीज एंड राइम्स, इस पे डालो. ओके. बुक कर दो आप आपके नाम पे. अपना. तो जिसने पहले किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसका पहले आएगा ग्रुप पे उसके नाम से वो बुक हो जाएगा. तो फिर और बाकी लोग वो मत लो ताकि वो रिपीट ना हो. ठीक है? Okay, ma'am. हेलो एवरीवन. Hello. Today we will doing exercise with singing a poem. Okay, so let's check our body.
shake, dance to the tune. And workout is a move. And we are healthy soon. So let's start. Okay. So, head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, Head, shoulder, shoulder, knees and Knees toes, and knees toes, and knees toes. and toes. eyes and ears and mouth. Nose, head, Shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. knees and toes. March, march, march. Let's all march. March, march, march. Get your body charged. March, march, march. Get your body charged. Head, shoulder, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes, Jump, jump, jump. Let's all jump, 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 jump. Make your muscle pump. Jump, jump, jump. Make your muscle pump. Head, shoulder, knees and toes, Punch, punch. Let's all punch, 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 punch. Take a healthy munch. Punch, punch, punch. Take a healthy munch. Head, shoulder, knees and toes, and eyes, ears, and mouth. Head, shoulder, knees and toes. Yeah. आपकी आवाज भी बीच बीच में ब्रेक हो रही थी, मतलब नहीं आ रही थी, बट अच्छा लगा आपने जो उसके ऊपर जो भी किया उससे समझ में आ रहा था कि क्या कर रहे हो. Okay. Then let's start other poem. So, there is one spider who climbed up in water spout, but the rain came down and spider washed out. And after some time, spider again climbed up in water spout and reached on the top. So let's start with singing poem. Incy Wincy spider climbed up the water spout. Say with me. Incy Wincy Spider with spicy mouth. down came the rain and spider was spider out. Down came the rain. Out. Out came the all the rain. Out in the sunshine and bright. Right upon the rain. Incy Wincy spider climbed up the rain. So Wincy spider went up the spout again. Okay. Okay. So, okay. Let's start this story. So, the story is Elephant and Friends. So, there was one elephant who was very alone. A lone elephant wandered the forest for looking for friends. And she came across to the monkey and asked, "Will you be my friend, monkey?" Monkey replied, "You are too big and I cannot swing on trees as I do. So I cannot be your friend," said monkey. So elephant was very sad. Then the elephant then came across to rabbit and asked him, she could be his friend. Rabbit said, "You are too big to fit inside my burrow. You
cannot be my friend, replied Rabbit. Then Elephant wondered and he met a frog and asked him if he could be his friend. The frog said, "You are too big and heavy. You cannot jump like me. I'm sorry, but you can't be my friend." The elephant was very upset, and the elephant asked the fox. He got the same reply that he was too big. Next day, all animals in the forest were running with fear. The elephant, the elephant stopped the fox and asked that what's happening, and was told that a tiger has been attacking all the animals. And elephant wanted to save the other weak animals and ran to the tiger and said, "Please, sir, leave my friends alone. Do not eat them." The tiger didn't listen and asked the elephant to mind your own business. Seeing no other way to solve the problem, the elephant kicked the tiger and fight with him. And the tigers it scared away. On here and she then went back to the other animals and told them what happened. On hearing how elephants saved their lives, the animals agreed in unison. "You are just the right size to be our friend." So, what is the moral of the story? The moral of the story is friend in need is a friend indeed. मतलब जरूरत में जो दोस्त हमें हेल्प करता है वही सच्चा मित्र होता है. Thank you everyone. Everyone clap for her. Very nice. भारती बहुत अच्छा किया आपने. आपके राइम्स भी आपने अच्छे से किए. थोड़ा सा आवाज बीच में कट हो रहा था बट राइम्स आपने अच्छे से प्रेजेंट किया. आपने उसके ऊपर अच्छे से एक्शंस भी किया. एंड फॉर स्टोरी आई लाइक ऑल योर प्रॉप्स. यू डेकोरेटेड वेरी नाइसली. आपने बिल्कुल ग्रास के ऊपर वो एनिमल लगाए तो लग रहा था सचमुच जंगल है क्या. एंड बहुत सारे एनिमल्स आपने दिखाए और कटआउट्स भी आपके बहुत अच्छे थे. तो उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स. वंडरफुल. मैम एक्चुअली वो यहाँ बैठी थी ना लॉबी में, इसलिए थोड़ा नेटवर्क का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए आवाज कट. हाँ, थोड़ा सा आप दूर भी चले जाते हो तो भी हो सकता है. कभी-कभी क्या होता है कि नॉइज़ समझ के ज़ूम उसको ये कर देता है, मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ समझ के कट कर देता है. जब हम कोई ट्यून वगैरह ये करते हैं ना, तो उसको हाँ. लगता है कि वो अननेसेसरी साउंड है. तो हाँ, वो हाँ. उसको ये कर देता है, कट कर देता है. तो उसकी वजह से भी नहीं आता है. तो उसका एक ऑप्शन है ज़ूम में, उसको ये करना पड़ता है, डीसेलेक्ट करना पड़ता है. वो ऑटोमैटिकली फिर ये नहीं होता है, कट नहीं होता है. जब ओके. हम ऐसे ट्यून या कुछ ये करते हैं ना तो उस टाइम पे वैसे होता है. जनरली हमारा म्यूजिक क्लास के टाइम पे वैसे ही होता है. अच्छा. साउंड सुनाई नहीं देता है, बीच में ही कट हो जाता है. हाँ. ठीक ओके. है, चलो ओके. देन. वेल डन, वेरी नाइस. मैम. ओके, तो सभी लोगों ने, जो लोग नए हैं उन्होंने एंजॉय किया ही होगा आज का सेशन. सभी लोगों ने एक्चुअली 2 राइम्स एंड 1 स्टोरीज अभी प्रिपेयर करने हैं इस वीक में. तो जो लोग नए हैं वो लोग एटलीस्ट सर्च करना शुरू कर दो कि कौन से राइम्स आप ले सकते हो एंड कौन से राइम्स आपको करने हैं. जिनको मैंने ऑलरेडी सेशन 1 का ये नहीं बताया है प्रोजेक्ट का, उनको मैं बाद में लूँगी. अभी हम 2-3 पॉइंट आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. वेरी बेसिक थिंग्स about preschool teacher and preschool. So it's an open discussion wherein you have to contribute few things.
First question to all of you. How should be the preschool? पहले टीचर पे बाद में आते हैं. प्री-स्कूल कैसे होना चाहिए? पहले इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे. सबको अपने-अपने ओपिनियन देने हैं एंड हाउ एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से प्री-स्कूल? What are the different classes include within that? Whatever is your understanding, what do you know about it? That also you tell me. And what are the different courses for pre-primary and primary teachers? What are the long form of each and every degree? What are the basic requirements to become teacher? Whatever comes to your mind, one by one, you all have to contribute. तो सबसे पहले कौन अपने व्यूज प्रेजेंट करना चाहेगा? हाउ शुड बी द प्री स्कूल? प्री स्कूल कैसा होना चाहिए? बेसिक क्वेश्चन इज व्हाट इज प्री स्कूल एंड हाउ इट शुड बी. Can I Yes. tell, ma'am? बोलो ना. I think preschool should be attractive. It should has a open space as well as a lot of different colorful toys, different classrooms, and yeah, अट्रैक्टिव होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्री स्पेस होना चाहिए, और क्या बोला? enough toys. ओके. और मैम अंकिता या मैम शुड बी Space. चाइल्ड फ्रेंडली प्लेस जहाँ पे बच्चों को लगे कि वो कंफर्टेबल है, उनका मन करे वहां पे और टाइम स्पेंड करने का, वहां पे कुछ सीखने का, वहां पे खेलने का. दूसरी चीज, वहां पे टीचर्स जो होने चाहिए उनको पढ़ाने के लिए, तो वो पैशनेट होने चाहिए कि दे शुड ट्रीट देम द किड्स लाइक देयर ओन किड्स, एंड उनके माइंडसेट से पढ़ाना चाहिए, बच्चों के माइंडसेट से उनको ट्रीट करना चाहिए डायरेक्टली, नॉट टू जंप टू टीच देम but to make them first feel safe, first make them comfortable and then start with them. And उधर जो toys होने चाहिए, equipments होने चाहिए, वो भी kids friendly होने चाहिए. और बस मैम. ओके. मैम चंचल हियर. प्री स्कूल में ब्लॉक एंड पजल चाहिए जिससे बच्चे शेप सीख सके, जिनसे वो कुछ भी मैच करने के लिए इंटरेस्टेड उनमें इंटरेस्ट आ जाए. ठीक है ना, वो तो होता ही है जनरली प्री स्कूल्स में. Yes. हाउ शुड बी द प्री स्कूल? व्हाट इज प्री स्कूल? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? इट्स अ पार्ट ऑफ टॉयज एंड ऑल, ब्लॉक्स एंड शेप्स एंड ऑल, तो वो तो होता ही है. एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट? ओके, नेक्स्ट. Anyone would like to say anything about preschool? No inputs? That's it? Should we close the discussion for the open forum now? Okay. Yeah. हाँ, anyone कोई contribute करना चाहता है या फिर मैं start करूँ? ठीक है. So basically, ma'am, in school, yes, actually in preschool, like classes should be divided according to the different grades. और जब हम class divide करते हैं according to the different grades like nursery, senior KG or junior KG, so each classroom should be decorated according to the curriculum or according to the teaching pattern. जैसे कि हमारा nursery का grade आ जाता है, so that time the students used to learn the different symbols A, B, C, D. So the walls of that classroom should be decorated in that pattern. Okay, that learning for A for apple, B for ball, like that. जब हम junior KG में transfer होते हैं, so in that time the decoration of the wall should be like different fruits name हो सकता है, different vegetable patterns हो सकते हैं, जो कि उस time पे हम बच्चों को सिखाएंगे in that class.
जब सीनियर केजी में हम जाते हैं, so it's like different time of the day. It is good morning or good afternoon of the day, or the different like that days of the week or the months of the year. So ये जो different, अभी हमने भी जो craft में activity की है, so accordingly we should decorate the each and every classroom according to the grade and according to the mode of their curriculum. In the preschool, so that this can help the learner to learn very easily. जब भी वो enter हो जाए class में, so whatever these children will view, they will learn more abruptly. So the wall should be decorated in that pattern, means according to their curriculum base. क्योंकि observation में बच्चे जो देखते हैं, mainly whatever they view, they learn more rather than theoretical process. तो I think वो एक हो सकता है. And another thing is like that, whatever I had seen, in nursery grade, means benches are not being allowed for the students because they are too small, and they use, I think, mats or carpets for them to sit in the ground. So because the thing is that like वो गिर सकते हैं and all, and from senior and junior KG benches provide होते हैं classroom में. So वो जो seating arrangement है, जो seating pattern है बच्चों का, उसमें थोड़ा सा coordination हम कर सकते हैं. We can do a little more coordination in the seating pattern of the students. And definitely, and one more thing is like playground is very required in the preschool, because because these children like to relax very much, so playground should be there in a preschool. So with all kind of that seesaw and whatever it's like swing, जो pattern है preschool के, वो तो रहना चाहिए. Okay, wonderful. Thank you. Chalo, thank you for your inputs. Now let's see. Let's start with scratch. When it comes to preschool, what is the meaning of pre? There are two words. One is pre and another is school. So pre stands for, or what do you understand when I say pre? Preparation for school, going to school. Okay, so it's a preparatory school. Means it's not exactly school, but it's a preparation for going to schools. And you all know in preschool there are 4 standards. One is playgroup. What is the age of playgroup? Students 2 years to 3 years. Then nursery. What is the age? 3 to 4 years. मिनिमम 3 years. ठीक है, 3 years से स्टार्ट होता है नर्सरी का एडमिशन. एंड देन जूनियर केजी को यूकेजी भी कहते हैं, एंड इसको यूकेजी, एलकेजी, अपर केजी, लोअर केजी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, ये सब कहते हैं. अलग अलग इसके टाइटल्स हैं. तो जनरली हम मैक्सिमम जगह पे जूनियर केजी, सीनियर केजी कहते हैं. तो सॉरी, यहाँ पे 4 years. And 4th is senior KG, 5 years. तो जैसे 3 to 4 नर्सरी चलेगा, 4 to 5 जूनियर चलेगा, एंड 5 to 6 जो है उनका सीनियर चलेगा. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के लिए 6 years कंप्लीट होने जरूरी है. 6 years का उनका ये रहता है कि एटलीस्ट 6 years कंप्लीट होने के बाद उनको फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन मिलता है. तो बहुत सारे स्कूल्स का ये रिक्वायरमेंट होता है. मिनिमम 6 रनिंग और 6 कंप्लीटेड, ये डिफर करता है हर एक स्कूल वाइज. तो दिस इज व्हाट इज बेसिक थिंग कि उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, उसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड आते हैं, एंड बेसिक एज का क्राइटेरिया क्या होता है. अब इसमें अगर सिलेबस की बात की जाए तो मिनिमम प्ले ग्रुप में कैपिटल A to Z का आइडेंटिफिकेशन आता है. देन 1 to 10 का काउंटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, मतलब उनको 1 to 10 काउंट करने आने चाहिए एंड आइडेंटिफिकेशन करने आना चाहिए. मिनिमम 5 कलर, 5 शेप, 5 फ्रूट, 5 एनिमल, इस टाइप का बेसिक जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो सारा, मैक्सिमम आइडेंटिफिकेशन का पार्ट जो होता है वो प्ले ग्रुप में कवर होता है. व्हेन इट कम्स टू नर्सरी, उनका अलोंग विथ
कैपिटल A to Z उनका राइटिंग भी होता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ ओरल हुआ, यहाँ पे A to Z का राइटिंग भी होगा, मीन्स दे शुड एबल टू आइडेंटिफाई then properly say that A to Z and write it. That is what is the final requirement of the nursery. Then now 8 इसमें numbers जो है वो 1 to 30 तक minimum आने चाहिए. That is what is the basic requirement. ये जो लोग को नहीं पता है नोट डाउन कर लेंगे. तो 1 to 30 का जो है वो नंबर्स का होना चाहिए, एंड जो लेटर्स का है वो रीडिंग एंड राइटिंग बोथ चाहिए यहाँ पे. तो प्ले ग्रुप में हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन देखा, लेकिन यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग बोथ आना चाहिए. दैट इज व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. तो क्योंकि राइटिंग इंट्रोड्यूस होता है, फिर हम यहाँ पे नर्सरी में उनको राइटिंग पैटर्न्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, एंड पैटर्न राइटिंग होने के बाद फिर उनका राइटिंग होता है. तो नंबर्स का जो राइटिंग है वो 1 to 10 नंबर्स का राइटिंग होता है. कहीं कहीं अगर थोड़े से आगे चलने वाले सिलेबस के तो टोटल 1 to 30 नंबर्स का राइटिंग भी नर्सरी में कवर होता है. अदरवाइज राइटिंग में 1 to 10 एंड रीडिंग में उनको 1 to 30 का काउंटिंग ये देते हैं. बाकी जो ऑफ कोर्स है तुम्हारा स्टोरीज, राइम्स, एक्टिविटीज, एंड फिर जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे 5 चीजों का किया था, यहाँ पे 10 सो 10 फ्रूट्स, 10 वेजिटेबल्स, 10 शेप्स, 10 कलर्स, इस टाइप का. तो जैसे प्ले ग्रुप में सिर्फ 5 उनको इंट्रोड्यूस किए थे, यहाँ पे 10 इंट्रोड्यूस करने हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट एडिशनल लाइक आप डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, सीजन्स, देन आपके कम्युनिटी हेल्पर्स, ऐसे एडिशनल जो चीज़ें हैं वो सारी भी नर्सरी में आ जाती है. तो करिकुलम जो है वो बोर्ड के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है. अगर आईसीएसई बोर्ड है तो आगे चलेगा, सीबीएसई बोर्ड है तो थोड़ा सा स्लो चलेगा, एंड एसएससी बोर्ड है तो बहुत स्लो चलेगा. तो ये जो है कौन कौन सी चीज़ें कौन से एज में आनी चाहिए, वो एडिशनल वाली वो डिफर करती है बेस्ड ऑन विच बोर्ड. एक्चुअली अभी पहली बात तो ये समझ लो कि प्री स्कूल में कोई बोर्ड नहीं होता है. ऑफ कोर्स प्री स्कूल जो है वो प्रिपरेटरी स्कूल है, वो स्कूल ही नहीं है, तो बोर्ड कहाँ से आएगा, है ना. लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा आईसीएसई बोर्ड का ही, तो एक्चुअली उनका जो बड़ा स्कूल होता है वो उस पर्टिकुलर पैटर्न में जाता है, उस बोर्ड में जाता है, तो उसके हिसाब से फिर वो जो प्री स्कूल का सिलेबस है उसमें चेंजेस करते हैं. बट अभी आप प्री स्कूल के टीचर अगर बनेंगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्री स्कूल में कोई बोर्ड नहीं होता है, क्योंकि वो पहली बात तो स्कूल ही नहीं है. दूसरी बात, उनको कोई यहाँ पे बोर्ड की एग्जाम तो प्री स्कूल में नहीं होने वाली है ना. वो जब स्कूल में जाएंगे, सेकेंडरी स्कूल में जाएंगे, तब बोर्ड की एग्जाम होगी, तब जाके बोर्ड का रोल आएगा, है ना. तो यहाँ पे तो बोर्ड का रोल ही नहीं है, तो बोर्ड कहाँ से आएगा. तो इसलिए ये बात आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है. तो जो पर्टिकुलर पैटर्न का स्कूल है उसके हिसाब से वो प्री स्कूल के सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट इज रिकमेंडेड कि इतना तो मिनिमम उनसे हमें कराना ही पड़ेगा. अब उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं जूनियर केजी की तरफ, तो जूनियर केजी में अभी समझो ये स्मॉल ए टू जेड हो गया, कैपिटल ए टू जेड हो गया, तो यहाँ पे उनका स्मॉल ए टू जेड का इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ये सब कुछ दोनों आ जाएगा. ऑफ कोर्स पहले वाला जो है उसका रिवीजन भी होगा, एंड नंबर्स में 1 to 50 जो है वो नंबर्स का रीडिंग एंड राइटिंग उनका रिकमेंडेड है. उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो बेसिकली इनको मैथ्स, उसके बाद में इंग्लिश, एंड उसके बाद हिंदी. बहुत सारे स्कूल में ईवीएस भी आ जाता है. तो जो बाकी हमने जो अभी तक नर्सरी एंड प्ले ग्रुप में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह वो सारी चीजें ली, वो फिर वो एनवायरमेंटल साइंस में आ जाता है, ईवीएस के अंदर आ जाता है. तो ऐसे 4 सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाता है जूनियर केजी में. जब वो जाते हैं तो जो सिलेबस है वो 4 सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाता है. तो मैथ्स के अंदर फिर बेसिक ऑपरेशन जो है आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसका इंट्रोडक्शन होता है. इंग्लिश के अंदर कैपिटल एबीसीडी हो गया, स्मॉल एबीसीडी हो गया. यहाँ पे फोनिक्स का आता है इंट्रोडक्शन. तो फोनिक साउंड रीडिंग के लिए हम स्टार्ट कर देते हैं. अब फोनिक साउंड में बेसिकली उनको फिर 1 लेटर वर्ड, 2 लेटर वर्ड, राइमिंग वर्ड एंड साइट वर्ड, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 3 लेटर वर्ड तक होता है इंग्लिश के अंदर, एंड साइट वर्ड, राइमिंग वर्ड्स, वो सारी चीजें होती हैं. तो फोनिक्स हो गया. फिर हिंदी के अंदर, हिंदी क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसके स्वर एंड व्यंजना, तो जैसे हम अब कड पढ़ते हैं, क ख ग घ वगैरह,
तो वैसे इसके हिंदी के जो स्वर हैं वो सारे स्वर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो जाता है। फिर उसमें से वोकैबुलरी, लाइक एक एक वर्ड का, जैसे ए फॉर एप्पल हम कहते हैं, वैसे क से जो भी है इस टाइप के, कढ़ाई याद आ रही है मुझे, क से कढ़ाई समझो फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे उस टाइप का जो है एक एक वर्ड का वो इंट्रोडक्शन पार्ट सिर्फ हिंदी का यहाँ पे होता है। एंड अगेन एनवायरमेंटल साइंस का जो आपने पहले कराया है उसका थोड़ा सा एडवांस पार्ट। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, और ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्टोरीज, राइम्स, तो वो सारा एडिशनल रहता ही है। बट ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स में जूनियर एंड सीनियर चलता है। तो अभी जैसे यहाँ पे A to Z का राइटिंग एंड रीडिंग हो गया, तो यहाँ पे कर्सिव A to Z आ जाता है सीनियर केजी के अंदर। अब कर्सिव राइटिंग भी डिपेंड करता है स्कूल के पैटर्न पे कि वो कौन से पैटर्न का स्कूल है। बहुत सारे पैटर्न में अभी जैसे एसएससी बोर्ड में कर्सिव राइटिंग मतलब वैसे भी वो सिखाते नहीं है तो बहुत सारे लोग बिना सीखे उसको लिखने की कोशिश करते तो हैंडराइटिंग बिगड़ जाता है, तो उसकी वजह से फिर बोर्ड के एग्जाम में कर्सिव नहीं बोला है। तो इसलिए उनको प्लेन जो प्रिंटेड लेटर्स होते हैं वैसे वाला सिंपल वाला ही बोला है। तो कर्सिव राइटिंग डिपेंड करता है, किसी स्कूल में होता है किसी स्कूल में नहीं होता है, तो ये ऑप्शनल रहेगा। तो A to Z का कर्सिव आएगा। राइटिंग में ऑफ कोर्स कैपिटल वगैरह तो वो हो गया। नंबर्स का 1 to 100 तक आएगा। एंड जो मैथ्स का पार्ट है ऑफ कोर्स उसमें जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन समझो जूनियर में हो गया, तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उस टाइप के ऑपरेशंस होंगे। एंड अगर समझो वहाँ पे 1 डिजिट नंबर का था तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर का होगा। अगर थोड़ा सा आगे चलने वाला सिलेबस है तो 1 एंड 2 डिजिट जूनियर में हो जाएगा, एंड अगेन 2 एंड 3 डिजिट फिर सीनियर में होगा। बट इट डिपेंड्स, इट्स ऑप्शनल। इतना 2 डिजिट 3 डिजिट पे एक्चुअली नहीं जाते हैं, 100 तक ही होता है। तो 100 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट के ऊपर मतलब उतना ही, वहां तक ही उसका नंबर्स का इंट्रोडक्शन होता है। इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा वाला ऑपरेशंस जो है वो मैथ्स में यहाँ पे नहीं आता है। उसके बाद जो अपना इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर आपको वही 2 लेटर 3 लेटर जूनियर में हो गया, तो यहाँ पे फिर अगेन 3 लेटर 4 लेटर 5 लेटर ऐसे करके आपके राइमिंग वर्ड, देन आपके साइट वर्ड्स, एंड उसके ऊपर का वोकैबुलरी, एंड देन सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगा। तो सिंपल उनका खुद का इंट्रोडक्शन देना, उनके फैमिली का इंट्रोडक्शन देना, उनका एड्रेस उनको लिखते आना चाहिए। So they are supposed to write at least 1 paragraph of their introduction, 1 paragraph of their address, about their family. So these are few of the output or results expected to do from the senior KG child. So जब वो first standard के interview के लिए जाते हैं तो at least this much is expected कि okay in this 4 years of preschool he has achieved this much. So इतना ही होता है, इससे ज्यादा एक्चुअली प्राइमरी स्कूल्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अच्छे स्कूल्स जो है वो बड़ा इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद में वो रिटर्न एग्जाम भी लेते हैं। तो रिटर्न एग्जाम में ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक बताई है उसका थोड़ा बहुत इवेल्युएशन असेसमेंट होता है। तो दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू टीच इन द प्री स्कूल। गॉट इट? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब ये हो गया what is preschool and what is in the syllabus of preschool. Now we will see how should be the preschool. Now how में सबसे पहले आता है कि पहले तो वो कहाँ होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले जो प्लेस है तो it should not be on very noisy and very traffic areas like highways and all. तो सबसे पहले तो उसका जो जगह है वो थोड़ा सा साइलेंट एंड रेसिडेंशियल एरिया में होना चाहिए, जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन नहीं चाहिए, एयर पोल्यूशन नहीं चाहिए। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया होता है तो वहाँ का एयर पोल्यूटेड रहता है। अगर हाईवेज एंड ऑल थोड़ा सा कंट्री साइड एरिया है तो वहाँ पे फिर बहुत ज्यादा आवाजें रहेगी। तो ऐसे एरिया में जनरली प्री स्कूल प्रीफर नहीं करना चाहिए। प्री स्कूल शुड बी इन somewhat silent place in the residential places. तो इसकी जगह कौन सी होना चाहिए? तो रेसिडेंशियल जगह पे प्री स्कूल्स होने चाहिए। देन प्लेस में और क्या आता है? तो सबसे पहले तो ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए। प्री स्कूल शुड नॉट बी
ऑन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से उसके बाद उसमें अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर है तो दैट विल डू, बट इट शुड नॉट बी लाइक किसी सोसाइटी में कर रहे हैं एंड ऊपर के इसमें, बिकॉज kids should get that feel of ground wherein at least they should actually play some games in soil, मतलब वो जो मिट्टी वाले जो होते हैं ना वहां पे रन करना, वहां पे खेलना, तो वो थोड़ा सा फील बच्चों को आना चाहिए, इसलिए प्रीफरेबली प्री स्कूल जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही होने चाहिए। देन वहां पे जो प्लेग्राउंड है वो अच्छा खासा बच्चों का एनर्जी थोड़ा सा ड्रेन हो जाए इतना तो भी बड़ा चाहिए, बहुत ही छोटा बिल्कुल यहाँ शुरू हुआ एंड वहां खत्म हुआ इतना भी कट शॉट नहीं चाहिए, थोड़ा सा तो अच्छा प्लेस चाहिए जहाँ पे बच्चे अच्छे से खेल सके एंड दे शुड गेट गुड फ्रीडम because of the place they should actually run and play good ground means जो outdoor games है that game they should play nicely, so playground requirement is there। then the next comes is जैसे अभी ये प्लेस के बारे में हुआ तो ऑफ कोर्स फिर बाकी की जो रिक्वायरमेंट है वो प्लेस की आएगी, बट देन नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर प्लेस अबाउट सेफ्टी। तो सेफ्टी में जैसे अभी मैंने बताया कि प्लेग्राउंड वगैरह चाहिए, लेकिन देयर शुड ओनली वन गेट फ्रॉम विच एग्जिट एंड मतलब वहीं से लोग आते हैं, वहीं से उनका आना जाना एक ही गेट से होना चाहिए, उसमें मल्टीपल गेट्स नहीं होने चाहिए, सो दैट on that particular gate some security guard should be there, some otherwise if you don't have separate security guard and all then it should be always locked, मतलब बच्चे आपके परमिशन के अलावा बाहर नहीं जाने चाहिए और बाहर के लोग बिना परमिशन के अंदर नहीं आने चाहिए, तो उसमें एक्चुअली या तो लॉक चाहिए या तो वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड चाहिए एंड ऑलवेज सीसीटीवी कैमरा वहां पे होना चाहिए, तो एवरीथिंग वॉट एवर पीपल आर कमिंग गोइंग दैट शुड बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली, so that is first thing for the safety point। then next is for safety, वहां पे जितने भी डोर्स है नॉब्स है उस डोर्स के जो नॉब्स है तो कहीं पे कुछ टूटा फूटा ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लग जाएगा तो बच्चों के हाथ में इंजरी होने की संभावना है, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, कट एंड ऑल हो सकता है। देन अगर ऊपर आपका है गैलरीज एंड ऑल तो एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली कवर्ड, मतलब अगर ऐसा है कि गैलरी से झांक के वो देखे तो गिरने नहीं चाहिए, तो वो उसकी जो भी ग्रिल है या जो भी है तो वो प्रॉपरली कवर्ड चाहिए एंड अगर वहीं वहां पे ग्लास या कुछ है तो मतलब वहां पे भी प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, तो अगर बच्चे ऊपर चढ़ते भी हैं तो गिरने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स है कोई भी वायर ओपन नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं कुछ लीकेज हो रहा है एंड ऑल, तो वो प्रॉपरली चेक होना चाहिए। जितने सॉकेट्स है इलेक्ट्रिक के सॉकेट्स वो अगर बच्चों की हाइट्स पे है तो वो प्रॉपरली लॉक चाहिए, तो उसमें उंगली नहीं डाल सके बच्चे, तो ये सारी सेफ्टी सिक्योरिटी जो मेजर्स है वो आपको प्री स्कूल्स में लेनी पड़ेगी एंड बाकी फिर उसके अलावा बहुत सारी चीजें आती है, जैसे अगर आपका पेंट्री हाउस है वहां पे तो फायर से उनका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो स्टेशनरी है उसमें जो ये होते हैं जैसे कैंची है, कटर है, स्टेपलर्स वगैरह है तो वो बच्चों के हाथ में नहीं लगने चाहिए। किचन में जैसे नाइफ एंड ऑल होता है तो वो बच्चों के रीच में नहीं होना चाहिए। बाथरूम क्लीनर्स एंड ऑल जो होते हैं एसिड वगैरह ऐसे जो थोड़े से मतलब हैंडी नहीं वाले जो लिक्विड वगैरह है वो बच्चों के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। बहुत सारे स्कूल एक जी स्कूल में जी किड्जी स्कूल जो है वहां पे एक ये हुआ था, बच्ची ने एसिड पूरा खोल लिया था एंड पूरा उसके बॉडी पे गिर गया था, तो बहुत मतलब उसके पूरे कपड़े वगैरह जल गए थे, लड़की को बचा लिया, मतलब वो एकदम से जली नहीं क्योंकि विंटर सीजन था तो उसने काफी स्वेटर वगैरह पहना था, बट कपड़े वगैरह जल गए एंड उसका काफी बॉडी पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा जला, बहुत सारा इरिटेशन एंड ऑल हुआ था। किसी स्कूल में जो अपने कैंडी जैसे दिखने वाले वो ये होते हैं ना रूम फ्रेशनर्स के लिए यूज होने वाले, तो उसको लोग बच्चों ने कैंडी करके खा लिया, कहीं पे फिनाइल्स की बोतल को जूस समझ के बच्चों ने पी लिया, तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं बहुत सारे स्कूल्स में, तो जितने भी बाथरूम क्लीनर्स एंड ऑल है वो बच्चों के रीच में नहीं होने चाहिए, तो ये सारे सेफ्टी
एंड सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो स्कूल में लेने चाहिए. दिस इज फॉर सेफ्टी. देन कम्स नेक्स्ट इज हाइजीन पार्ट, है ना. तो सेफ्टी के बाद आता है हाइजीन. तो हाइजीन में ऑफ कोर्स अभी तो कोरोना की वजह से आपको बहुत सारे हाइजीन सेफ्टी एंड हाइजीन मेजर्स लेने पड़ते हैं. वेदांत आप खोलोगे. तो ये जो सेफ्टी एंड हाइजीन मेजर्स है उसमें जैसे क्लीनिंग जो है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए. उसके बाद जैसे अगर आपके 2 बैचेस है समझो, एक आपका क्लास चालू बाद में आना. एक मॉर्निंग बैच समझो है तो उसके पहले एंड उसके बाद मतलब 2 बार क्लीनिंग. तो जैसे फर्स्ट बैच खत्म होता है उसके बाद अगर सेकंड बैच है तो वो फिर क्लासरूम का पूरा क्लीनिंग एंड उसके बाद नेक्स्ट बैच. अगर आपके यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह मतलब दिया जाता है बच्चों को तो देन अगेन you have to follow that nutrition criteria, you have to follow a proper timetable, and there are several different requirements for that. अगेन इन हाइजीन और नाउ ऑफ कोर्स ये पैंडेमिक के बाद तो अभी तक स्कूल चालू ही नहीं किया है एंड देयर आर सेवरल मेजर्स. बट प्रायर टू दैट अपने जितने भी टीचर्स एंड जितना भी आपका असिस्टेंट स्टाफ होता है उनको फर्स्ट एड का ट्रेनिंग होना चाहिए. उनको इवन फायर एक्सटिंग्विशर किस टाइप से यूज करते हैं उसका ट्रेनिंग होना चाहिए. ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दोनों में आएगा एंड हाइजीन में भी आएगा. एंड उसके बाद फिर जितने भी टॉयज वगैरह है वहाँ पे जितना सामान है वो वीकली प्रॉपरली उसका क्लीनिंग होना चाहिए. जितनी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती है वो नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए. मतलब टॉयज भी यूज़ होता है तो वो टॉक्सिक टॉयज नहीं होने चाहिए. मतलब बच्चे मुंह में डालते हैं तो उनको कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो सारा मटेरियल नॉन टॉक्सिक होना चाहिए. उसके बाद अगर बच्चों ने कुछ गिल खा लिया कुछ हो गया तो आपका स्कूल का एक कांटेक्ट होना चाहिए डॉक्टर्स के साथ. मतलब जो इमीडिएट बेसिस पे वहाँ पे बच्चों के लिए आ जाए एंड कुछ भी अगर इमरजेंसी आती है. ऑलवेज यू शुड हैव ऑल दिस सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स. एंड आपको पेरेंट्स से भी लाइक पहले जब एडमिशन होती है उसी टाइम पे आपको बच्चों का पूरा हिस्ट्री लेना पड़ता है. देन उसके एडिशनल आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स लेने पड़ते हैं. अभी नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कुछ चीज़ें जो मतलब हमारे स्कूल में हुए थे 1-2 किस्से. तो ये बेसिक हो गया प्लेस के बारे में, सेफ्टी सिक्योरिटी एंड हाइजीन के बारे में. तो जो नेक्स्ट पोर्शन है इसका वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. कल मोस्ट प्रोबेबली जैसे एवरी ट्यूसडे हमारा गेस्ट लेक्चर होता है नॉलेज शेयरिंग सेशन. तो मैं नॉलेज शेयरिंग सेशन का लिंक शेयर करूंगी. तो अगर सेम टाइम क्योंकि वो 5:30 to 6:30 होता है नॉलेज शेयरिंग सेशन तो ऑफकोर्स दैट विल क्लैश टू आवर रेगुलर टाइमिंग. सो 4 से 5 का होता है तो हम कर लेते हैं उसके बाद फिर नॉलेज शेयरिंग होता है. बट अभी 6 to 7 के इसमें आई गेस नहीं हो पाएगा. तो लेट्स सी अगर कल नॉलेज शेयरिंग सेशन होगा तो क्लास नहीं होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी एंड नॉलेज शेयरिंग सेशन का गेस्ट लेक्चर का लिंक आपको ग्रुप पे भेजूंगी. तो आइदर we will meet directly on Wednesday or if at all if there is no knowledge sharing tomorrow then we will have regular class tomorrow. अब तक जो लिया उसमें किसी को डाउट्स क्वेरीज है तो पूछ लो. फाइन. नोट्स लिया करो क्लास के दौरान. अगर आपको कुछ भी होता है तो एटलीस्ट क्या हुआ क्लास में क्या क्या सीखा है. क्योंकि ये जो मैं है अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाती हूँ ये इसका कहीं पे ऐसे लिखा हुआ नहीं है नोट्स नहीं है. तो ये मैं पूरा मेरे माइंड से ही आपको सब कुछ बताती हूँ. तो ये मेरे पास भी ऐसे रिटर्न में कहीं पे है नहीं. तो वॉट एवर आई एम टेलिंग यू इट्स ओनली थ्रू माई साइड. सो दैट ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टीचिंग जर्नी. So you need to take notes properly. If at all it's not possible during when I am telling you now, just after the class you may take 10-15 minute time and just note down all the points whichever I have already brief you. So जैसे अभी हमने प्लेस के बारे में देखा, फिर सेफ्टी के बारे में देखा, सिक्योरिटी के बारे में देखा, हाइजीन के बारे में देखा, है ना. तो फिर वो जो पॉइंट्स मैंने अभी तक आपको बताए तो एक एक लिख के ले लो एंड इसका स्क्रीनशॉट निकाल के फिर इसको मैंने क्या क्या इलेबोरेट किया था. तो इस टाइप से आप खुद के नोट्स बनाते जाओ. ठीक है मैम एक आपने जो व्हाट्सएप पे जो भेजा है लेसन्स भेजे थे कुछ तो वैसे लिखना है पूरा बुक में ना. वो नोटबुक में लिखना है. जैसे मैंने बताया था ना कि उसके मैं नोट्स मतलब वो सिर्फ असाइनमेंट के लिए ही है. तो वो वाले लेसन्स हम स्टार्ट करने वाले जब अपना ये वाला पोर्शन हो जाएगा. अभी पहले हमारा हाउ शुड बी द प्री स्कूल, हाउ शुड बी द टीचर,
एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, ये 2-3 चीजें हम थोड़ा सा ओरल देखेंगे. This is the first session content, and then later on we'll start with those lessons which I have already shared to you. So meanwhile you have to complete it writing in the notebook. तो आपको वो नोटबुक में लिख के रखना है. एंड देन ड्यूरिंग आपका जो स्टोरी राइम्स का चल रहा है तब तक हम वो वाले लेसन्स फिनिश कर देंगे. एक बार वो हो जाएगा उसके बाद फिर हमारा थ्योरी स्टार्ट होगा. ओके मैम. ठीक है. और वो राइटिंग के बाद आपको दिखाना है मैम. हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट मतलब ये कमिंग थर्सडे को आपको सभी को वो जो लिखा है नोटबुक में वो आपको दिखाना है. तो एवरी थर्सडे यू हैव टू शो व्हाटएवर असाइनमेंट्स यू हैव फिनिश्ड. ओके. Okay, ma'am. Okay, ma'am. चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय Bye. बाय मैम. Bye ma'am. Bye everyone. बाय.